Hi, welcome to my channel. Wow, Commerce with Madhu. Myself, Madhu Setia, Assistant Professor in Commerce. Today, we will do the topic Origin of Taxation in India. कि इंडिया में टैक्सेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? As we know, payment of tax is a mandatory liability of each and every citizen of the country. As our government need money to fulfill obligations towards nation. First of all, our government need money to maintain law and order. Next is, our government need money to protect from foreign invasions. Moreover, our government need money to provide infrastructure and many more things. Our government need money to do a lot of things. In return, it gives us the facilities. It means tax is collected from the people for their own benefit, just as the sun draws moisture from the earth to give it back 1,000-fold. Now, I tell you, income tax is a direct tax as it is charged directly on our income. Means whatever we earn, we pay tax on that amount. That's why it is known as direct tax. Okay, this is direct tax. In India, the system of direct taxation as it is known today has been in force in one form or the other even from the ancient times. कि टैक्सेशन का सिस्टम जो इंडिया में आज पाया जाता है वो पास्ट से ही चलता आ रहा है. पास्ट में भी लोग टैक्स पे करते थे. वैरायटी ऑफ टैक्स मेजर्स आर रेफर्ड इन बोथ मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र. कौटिल्या's concept of taxation emphasized equity and justice in taxation. The affluent section of the society should pay higher taxes as compared to the poor, according to Kautilya. Means जो ज्यादा अर्न करते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए और जो कम अर्न करते हैं वो कम भी टैक्स पे करें तो चलता है. नाउ जो प्रेजेंट में इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है दैट इज ऑल्सो द सेम. हियर हाई इनकम ग्रुप हैव टू पे टैक्स एट हायर रेट्स एंड लोअर इनकम ग्रुप हैव टू पे टैक्स एट लोअर रेट्स. नाउ स्टूडेंट्स, our next topic is history of income tax in India. First of all, first income tax act was passed in 1860. That was known as Income Tax Act 1860. And what were the features of this act? This Income Tax Act was first time imposed on the people of India in 1860 by Sir James Wilson. This tax was charged to recover from the financial crisis and to compensate heavy losses suffered by the British government during the first Indian independence struggle in 1857. Means 1857 में जो इंडिया में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया गया था उसमें कंट्री को हैवी लॉसेस हुए थे. मीन्स जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स को लॉसेस हुए थे तो उस लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने हम पे एक टैक्स का एक्ट लगा दिया 1860. दैट वाज इनकम टैक्स एक्ट 1860. नाउ नेक्स्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1886. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स इन द इयर्स 1863, 1867, 1871, 1873 and 1878. 5 बार 1860 वाले एक्ट में अमेंडमेंट किए गए. आफ्टर दैट 1886 में एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया दैट वाज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1886. It was also based on the Act of 1860, but in this act, agriculture income was declared tax-free. Okay, which income was taxable in 1860, but in the year 1886,
एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1918 which was known as Income Tax Act 1918. Now all of you know 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इतने हैवी लॉसेस हुए थे कंट्री को, उसको कंपनसेट करने के लिए 1918 में एक नया एक्ट पास किया गया एंड इन दैट एक्ट इनकम टैक्स रेट्स वर रेज्ड टू कोप अप विद द फाइनेंशियल स्ट्रेस after the First World War. Done. Now the next act was passed in 1922, which was Income Tax Act 1922. Main points of this act were: first point is establishment of Central Revenue Board in 1924. Next, provision of charging surcharge along with income tax. Means income tax भी चार्ज करेंगे और टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी लगेगा। मीन्स एक कैटेगरी डिवाइड कर दी गई कि अगर कोई पर्सन इस लिमिट से ज्यादा अर्न करता है तो वो टैक्स तो पे करेगा ही करेगा, साथ के साथ वो सरचार्ज भी पे करेगा। टैक्स के ऊपर ये लगता था। नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन वाज प्रोविजन ऑफ टैक्स रेट्स इन द एक्ट। टैक्स रेट डिफाइन किए जाने शुरू किए गए। नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन द करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट जो है 1922 से स्टार्ट हुआ। नाउ द नेक्स्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1961 which was Income Tax Act 1961. After independence, a new Income Tax Act was introduced in the year 1961, which came into force from 1st April 1962. This act was divided into 298 sections, numerous subsections and 14 schedules. Most important amendment in 1987 when for the purpose of charging income tax a uniform previous year was defined as period from 1st April of one year to 31st March of next year, and this was made mandatory for all types of SSC. Means अब जो इनकम चार्ज होगी वो 1st अप्रैल ऑफ वन ईयर से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च तक जो इनकम अर्न की जाएगी उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। मीन्स सबके लिए एक यूनिफॉर्म ईयर हो गया, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर हो गया। इसी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इनकम पर जो है इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स एक्ट इम्पोजेज टैक्स ऑन इनकम अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स। नाउ ये 5 हेड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम फ्रॉम सैलरी। एक सैलरीड पर्सन को जो इनकम रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ही पेज टैक्स ऑन दैट अमाउंट ऑफ सैलरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं किसी को। नाउ वहाँ से जो हमें रेंट रिसीव होता है ऑन दैट अमाउंट ऑफ इनकम वी पे टैक्स, दैट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलग अलग रूल्स हैं दैट विल डू इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, डिफरेंट हेड्स के अंडर पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक पर्सन बिजनेस कर सकता है या अपना प्रोफेशन चला सकता है। एज डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनका प्रोफेशन होता है, बट वो बुक्स तो दोनों ही मेंटेन करते हैं। बिजनेसमैन भी बुक्स मेंटेन करता है और प्रोफेशनल पर्सन भी बुक्स मेंटेन करता है। नाउ जो उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग उनका जो इनकम होती है, प्रॉफिट निकाले जाते हैं, ऑन दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दे पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन्स कैपिटल एसेट के सेल करने पर जो हमें गेन होता है। नाउ कैपिटल एसेट कौन सी होती हैं? दैट विल इन डिटेल डिस्कस इन द चैप्टर कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नाउ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंडर जो इनकम होती है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स। नाउ लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मीन्स द इनकम्स विच डू नॉट कम इन ऑल द अबव 4 हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। इन 4 हेड्स के अंडर जो इनकम नहीं आती, एज
आपकी इनकम हो सकती है इनकम फ्रॉम एफडीज, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, म्यूचुअल फंड्स पे इंटरेस्ट मिलता है, हमें डिविडेंड मिलता है डिफरेंट कंपनी से अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी इनकम्स होती हैं, कैजुअल इनकम्स होती हैं, जैसे हमने लॉटरी जीत ली या हमें कहीं से हॉर्स रेस से अमाउंट विन किया हमने। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारी इनकम्स होती हैं जो इन 4 हेड्स के अंडर नहीं आती। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन के अंडर नहीं आती। दैट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, नाउ इन 5 हेड्स से होने वाली इनकम को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज़ ग्रोस टोटल इनकम, जिस पे हमें टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा उसके आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं विच 1 बाय 1 वी विल डिस्कस ऑल द रूल्स, कि उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद क्या किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू द टॉपिक पर्सन। हु आर द पर्सन्स हु पे इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल as you, me or anybody else. They come under the individual. Individual means a person who pays tax on his own income he earns himself. Now second is partnership firm. Partnership firm also come under income tax act. Partnership firm भी income tax act के अंडर 1961 के अंडर income tax पे करती हैं। Now the third is कंपनी। फोर्थ इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आते हैं जो अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द लास्ट इज लोकल अथॉरिटी। ऑल दीज टर्म्स यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस। नाउ ऑल दीज कम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दीज आर द पर्सन्स हु पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, we will discuss about some interesting facts regarding income tax. According to CBDT, now what is CBDT? Central Board of Direct Taxes. It is a main authority, it is a main department which जो income tax authorities जिसके अंडर आती हैं। Now according to CBDT, in Feb 2020, total population who filed a return is 5.78 crores. Now from this 5.78 crore, people who showed their income below 2.5 lakh, that is 1.03 crores, and the people who declared their income between 2.5 to 5 lakh is 3.29 crores. Now the people who disclosed their income up to 5 lakh is 1.03 crore and 3.29 crore. Total is 4.32 crores. Now what is left? Only 1.46 crore who disclosed their income above 5 lakh. Now out of 133 crores, India's population is 133 crore and only 1.46 crore people disclose their income above 5 lakhs. Now the next, one more interesting factor, which is, do you know who is Akshay Kumar? He is the superstar. Now Akshay Kumar, who had been at the top position for several years as highest taxpayer in B-Town, had paid 29.5 crores in 2017. In 2018-19, Amitabh Bachchan displaced him by paying rupees 70 crores as income tax. Now the next interesting fact is, I will tell you the name of the countries where no income tax is charged from the people. First is Bermuda, second is Monaco, next is Bahamas, Andorra and United Arab Emirates. These are the countries where people do not pay any amount of income tax.